Hello, dear students. Good morning. And now I am BC sir. I teach you the English and ENV. Okay. Now the last period we see. Last period we saw the noun and kinds of the noun. Now the noun. We see the definitions of the noun in the first parts. After then we see the kinds of the noun. Now the five kinds of the noun. One is the proper noun, second is the common noun, third is the collective noun, fourth is the material noun, and fifth is the abstract noun. Okay. Today's we see about the third kinds of the noun. Last period we see the proper noun and common noun. These periods we see the collective noun. The first collective nouns means what is the collective noun? What is the means of the collective noun? Now, a name that is used for a collections of people, animals, things are known as the collective noun. Collections. The same one kinds, things, peoples, animals, birds. Now come and become a collections. This collections name is a collective noun. Simple example. Now boy is the common noun. Boy is the common noun. But Ram is the proper noun. Yes, but the boy like this the girls is the common noun and Sita is the proper noun. But when the both girls and boys come together becomes a students, and this collections is called the students. Like this the people comes together, now become a crowd. Okay, so here's of the some givens a collective nouns. Now given a one box, and in the box given a collective nouns. Now the first gang, libraries, after then fleet, flock, band, litter, troop, cure, crowd, regiments, bunch, pride, pack, team, here, swarms, bundle, and school. Okay, all of the collective now. But when the ships or birds come together and make a one group, this group is called a flock. Okay, so we learn like this. We learn like this: a flock of sheep, a flock of bird, a flock of sheep, a flock of bird. After that, now a bunch of flower, a bunch of flower, a bunch of flower, a bunch of key. Like this, you learn all of the collective nouns. Means simple. The collection of the sheep made these collections names the flock. After that, the collections of the birds make against flock. The collections of the flower, number of flower come together and it binds. Now the bunch become a bunch. After that same to key. यहाँ पर हमने देखा है कि किसी भी
चीज़ का कलेक्शंस अगर होता है तो वो कलेक्शन को जो नाम दिया जाता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और वो कलेक्शन में सब एक ही तरह के पीपल, थिंग, एनिमल्स और बर्ड होने चाहिए, तो उस कलेक्शंस को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है तुमको कि भाई शिप, बहुत सारे शिप अगर पास में आ रहे हैं तो वो जो ग्रुप बन जाता है उस ग्रुप को फ्लोक बोलते हैं। उसी तरह बहुत से वन काइंड्स ऑफ द बर्ड्स, पिगन, now the 10, 20, 50 pigeons come together become a flock। ओके, तो शिप का भी फ्लोक बनता है और बर्ड्स का भी फ्लोक बनता है। उसी तरह बहुत से फ्लावर हमने अगर एक जगह लाए तो उसका बंच बनता है। नाउ आफ्टर दैन की यानी चाबियाँ, जो हमारे लॉक को लगती है वो चाबियाँ कीज। कीज को भी हम अगर कलेक्शन करते हैं, बहुत सारी एक जगह पर बाइंड करते हैं, तो उस कलेक्शंस को बंच कहा जाता है। ठीक है, और इसको लर्न किस तरह करना है ये मैंने बताया। अ फ्लोक ऑफ अ शिप, अ फ्लोक ऑफ अ बर्ड, अ फ्लोक ऑफ अ शिप, अ फ्लोक ऑफ द बर्ड, अ बंच ऑफ द फ्लावर्स, अ बंच ऑफ द की। ओके, कैटल, कैटल मीन्स एनिमल। बहुत से एनिमल्स जो होते हैं ये डोमेस्टिक, नियर अबाउट ये डोमेस्टिक एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है जनरली। तो वो एनिमल जब कलेक्ट होते हैं तो उस ग्रुप को हियर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हियर्ड, हर्ड और हियर। ओके, हर्ड और हियर। आफ्टर दैन द मंकी, बहुत से मंकी जब एक जगह आते हैं तो उसे हम ट्रूप कहते हैं। और ट्रूप ऑफ मंकी, मंकी का क्या होता है? ट्रूप होता है। और हर्ड्स और हियर्स ऑफ द कैटल, जानवरों का क्या होता है? हियर्स होता है। हो गए। उसके बाद में हमको देखना है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बहुत से म्यूजिशियंस अगर एक जगह पर आ रहे हैं और वो वर्क कर रहे हैं तो उनको हम बैंड बोलते हैं। उसके बाद में थ्यूज, थ्यूज यानी चोर। बहुत से चोर आते हैं तो उसको हम गैंग बोलते हैं, चोरों की गैंग, द गैंग ऑफ थ्यूज। लिटर्स, पपीज़, पता है ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डॉगीज़ के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसे हम पपीज़ कहते हैं। तो ये जब पपीज़ का कलेक्शन बनता है, 10, 20, 15 पपीज़ एक जगह आते हैं तो उस ग्रुप को हम लिटर बोलते हैं, लिटर ऑफ द पपीज़। और लिटर ऑफ द किटन, किटन ये कैट का बच्चा होता है, यंग वंस ऑफ द कैट। अ सॉर्म्स ऑफ अ बी, हनी बी या बीज जो होती है, मक्खियाँ, फिर वो मधुमक्खी हो या अदर मक्खी हो, वो जब पास में आती है बहुत सी तो वो जो ग्रुप्स बनता है, वो जो कलेक्शन बनता है उसे हम सॉर्म बोलते हैं। सॉर्म, SWARM। ओके। एंड व्हेल्स का जो होता है, व्हेल्स इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर में अगर सबसे बड़ा कोई एनिमल होगा तो व्हेल होगा। और ये व्हेल्स जब बहुत से व्हेल्स ग्रुप में आते हैं तो वो कलेक्शंस को हम स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। इस तरह हमारा एक कलेक्टिव नाउन दिया गया है, ये आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है। उसके बाद में अ पैक ऑफ वॉवेल्स, अ पैक ऑफ डॉग, अ पैक ऑफ कार्ड्स। कार्ड प्लेइंग कार्ड होते हैं, इसके पैक को भी हम, इसके कलेक्शन को हम पैक कहते हैं। वॉवेल्स के कलेक्शंस को पैक कहते हैं। डॉग के कलेक्शन को हम पैक कहते हैं। ओके। उसके बाद में जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर का जो कलेक्शंस होता है उसे रेजिमेंट्स कहते हैं। जिस समय उसी तरह स्टिक्स, स्टिक्स यानी लकड़ियाँ, लकड़ियों का बंडल्स होता है, द बंडल ऑफ द स्टिक्स। बुक्स जहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं वहाँ पर उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं, तो उस कलेक्शन को हम लाइब्रेरी कहते हैं, लाइब्रेरीज ऑफ अ बुक। अ प्राइड ऑफ लायन, लायन का जो ग्रुप होता है उसे प्राइड कहा जाता है। अ फ्लीट ऑफ शिप, शिप मीन्स SHIP, शिप, शिप यानी जहाज होता है। बहुत से जहाज अगर वहाँ पर एक जगह गैदर हुए तो उसे हम फ्लीट कहते हैं। उसी तरह ट्रक्स और प्लेन्स, ये सभी के ग्रुप को हम फ्लीट कहते हैं। अ फ्लीट ऑफ द शिप, अ फ्लीट ऑफ द ट्रक, अ फ्लीट ऑफ द प्लेन्स। ओके। क्यूअर्स, एरो, now you know arrow, bow and arrow. The in the arrows, when
The collections of the arrows is called the cuers. प्लेयर जो होते हैं वो प्लेयर की एक टीम बनती है, उनका जब कलेक्शन होता है, जब 10, 20, 30, 50, ओके, ये जो प्लेयर्स एक जगह पर आते हैं तो वो एक टीम बनती है. इट इज कॉलिंग द टीम, अ टीम ऑफ द प्लेयर्स. एंड अ क्राउड ऑफ पीपल, और पीपल का जो होता है वो क्या होता है, क्राउड होता है. अब नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कलेक्टिव नाउन. अ पैक ऑफ वॉवेल्स अटैक्स द डियर. वॉवेल्स के झुंड ने, उल्फ्स का प्लूरल फॉर्म्स है वॉवेल्स. ओके, तो उल्फ का प्लूरल फॉर्म है वॉवेल्स, और उनका जो ग्रुप्स होता है वो पैक, वो अटैक किस पर कर रहा है, डियर पे. माई मदर्स लॉस्ट हर bunch of key. Okay, third number, a gang of the thief. A gang of thief look the bank last night. लास्ट नाइट में चोरों की गैंग ने. ओके, तो थ्यूज का जो ग्रुप था उसे हम क्या कहेंगे, गैंग. अ प्रेजेंटेड अ बंच ऑफ फ्लावर. ओके, 5 number, a herd of cattle was the grazing in a meadow. Okay, 6 number, a band of musicians play some wonderful music. After that, the old man was carrying a bundle of sticks on his head. The old man was carrying a bundle of sticks on his head. After that, a fleet of cars were parked outside the wedding hall. Okay, अब यह आपको सब नोटबुक में नोट डाउन करना है. जहाँ पर आपका स्पीड कम पड़ रहा है वहाँ पर आप वीडियो पॉज करना है. वीडियो पॉज करने के बाद में आपको मैं यहाँ पर ये पहले अब भी बताता हूँ जिससे आपको ये क्लियर दिखेगा. आपको सबसे पहले ये हेडिंग डालना है, कलेक्टिव नाउन. ये हेडिंग हुआ है कलेक्टिव नाउन का, ये हेडिंग डालना है. उसके बाद में हमको ये क्वेश्चन लिखना है और ये हेल्प कॉलम लिखना है. 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 एंड 3, 15 एंड 3, 18. और नीचे हमारे 18 फिलिंग द ब्लैंक्स दी है, उसमें हमको ये राइट डाउन करना है. तो देख लिए, आपको ये क्लियर दिख रहा होगा. अ फ्लोक ऑफ अ शीप बर्ड. ओके, ओके, ये तुमको लर्न करना है और नोटबुक में 3 टाइम राइट डाउन करना है. और वो राइट डाउन आप कैसे करोगे, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल. ओके, लाइक दिस, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ क्यूअर्स ऑफ एरो, अ क्यूअर्स ऑफ एरो. ओके बॉयज, थैंक यू, बाय.